Good evening, students. Today I will continue the same topic, virus, which is need based. And today, after the shape and size, my next topic in virus is general structure of viruses. General structure of viruses. Okay, now in this general structure of viruses, we know the structure of viruses which is commonly found. Structurally, viruses are made up of envelope, capsid, that is called protein coat, and nucleoid, and occasionally one or two enzymes. Structurally, viruses are made up of what? Envelope, second capsid, third is nucleoid, and occasionally one or two enzymes. Now let's come to the first part of structure, that is envelope. Okay, now the question is, what is envelope? Some virus possess an outer layer of thin loose covering. Okay, some viruses possess an outer layer of thin loose covering called envelope. ठीक है. Now this envelope, ये जो envelope है, this envelope is made up of protein, lipid and carbohydrate. Protein from virus, whereas lipid means fat also, lipid, and carbohydrate from host. ठीक है, मतलब इन्वेलप प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनता है, जिसमें से प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है वायरस खुद, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूट करता है वो होस्ट जिसके बॉडी में वो प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज मीन्स इन्वेलप इज फाउंड इन सम एनिमल वायरसेस. ये कुछ एनिमल वायरसेस में पाया जाता है. कौन कौन से एनिमल वायरसेस? जैसे कि एग्जांपल, हर्पिस वायरस एंड HIV virus. Herpes virus and HIV virus have an envelope. Okay. Now the small subunits of a envelope के जो small subunit है उसको पेप्लोमेयर कहा जाता है. are called पेप्लोमेयर.
ठीक है, तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ द इन्वेलप आर कॉल्ड पेप्लोमेयर. द वायरस which does not possess the envelope are called naked. The virus which does not possess the envelope are called naked. The virus which does not possess the envelope are called naked. जो वायरस जिसमें कोई इन्वेलप नहीं है उसको बोला जाता है नेकेड. ये हो गया पहला पार्ट, दैट इज इन्वेलप. सेकेंड पार्ट में आओ. सेकेंड पार्ट क्या है? कैप्सिड. CAPSID. कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट. इट इज अ प्रोटीन कोट दैट सराउंड्स द सेंट्रल पोर्शन of the nucleoid and enzyme. It is a protein coat that surrounds, जो घेर के रखता है किसको? That surrounds the central portion of nucleoid and enzymes. ठीक है, एंड एंजाइम्स. लेकिन एंजाइम्स कब? इफ प्रेजेंट. एंजाइम हर में रहे, हर वायरस में मौजूद हो, ये जरूरी नहीं है. इफ प्रेजेंट. नेक्स्ट, द कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ अ स्मॉलर सब यूनिट दैट इज कॉल्ड कैप्सोमेयर. The capsid consists of a specific number. The capsid consists of a specific number and arrangement of smaller subunits. The capsid consists of a specific number and arrangement of smaller subunits. इसको क्या कहा जाता है? कैप्सोमेयर. Called कैप्सोमेयर. ठीक है, जिस तरह से इन्वेलप के सब यूनिट को कहा गया पेप्लोमेयर, उसी तरह से कैप्सिड के सब यूनिट को कहा गया कैप्सोमेयर. एंड प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड. क्योंकि हम लोग वायरस के डेफिनेशन को भी पढ़े हैं. इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन. न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. एंड दिस एक्स्ट्रा लेयर कॉल्ड इन्वेलप विच मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब थर्ड होगा. Now the third is nucleoid. The genetic material that is either DNA or RNA of the virus are called nucleoid. Third is nucleoid. Nucleoid क्या होगा? The nucleic acid present in the virus is called nucleoid. The nucleic acid present in the virus is called nucleoid. The nucleic acid present in the virus is called nucleoid. Now, it is the infective part of the virus. Nucleoid जो है ये DNA हो या RNA हो, it is the infective part of the virus which utilize जो इस्तेमाल करता है the host metabolic machinery. ठीक है, and thus perform the synthesis
and assembly for viral components. Okay, next, it is the infective part. It is the infective part. It is the infective part of virus which utilizes the host metabolic. It is the infective part of virus which utilizes the host metabolic machinery for synthesis and assembly. ठीक है, assembly for viral particles और viral components. ठीक है, यानी जो न्यूक्लिक एसिड पार्ट है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये इन्फेक्टिव पार्ट है वायरस का, जो यूटिलाइज करता है होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी को. क्यों? फॉर सिंथेसिस एंड असेंबलेज ऑफ वायरल कंपोनेंट. पहले वो वायरल डीएनए को बनाता है और उसके बाद वो प्रोटीन कोट से उसको सराउंड करके एक कंप्लीट वायरल किट्स को तैयार कर लेता है. ठीक है, अब बोला गया था जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस आर ऑफ 4 टाइप. द जेनेटिक material of viruses are of 4 type. पहला, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस तरह से भी लिखा जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये बेसिकली किसमें पाया जाएगा? हर्पिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस. एग्जाम्पल, हर्पिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस. सेकेंड क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. इसका एग्जांपल क्या है? कॉलीफेज. ठीक है. थर्ड इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. इसका बेस्ट एग्जांपल है उन ट्यूमर वायरस. उन, WUND, उन ट्यूमर वायरस. फोर्थ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये पाया जाएगा रिट्रोवायरस, HIV वायरस, पोलियो वायरस, है ना. इसका एग्जांपल क्या होगा? रिट्रोवायरस, HIV नहीं लिखते, उसी में आ गया पोलियो वायरस. ठीक है. तो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस एंड विच आर फाउंड इन फॉलोइंग दिस फॉर्म्स. इज दिस क्लियर? तो सब कुछ समझ आ गया यहां तक? नाउ आफ्टर न्यूक्लियोइड वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस. वी ऑल नो दैट द वर्ड रिप्रोडक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर वायरस. व्हाई? बिकॉज दे लैक द सेलुलर components or cell organelles which to perform reproduction. So they do not reproduce themselves but divide by a special mechanism, and these are described under 2 processes,
lytic cycle and lysogenic cycle. Okay, so our next topic is life cycle of viruses. Life cycle of viruses. Now this life cycle of viruses, the word reproduction is not at all appropriate, is not at all appropriate in case of viruses. The word reproduction is not at all appropriate in case of viruses because they have no cellular components. They have no cellular components or cell organelles. Because they have no cellular components or cell organelles, okay, for performing reproduction. So they do not reproduce themselves, but divide by a spatial mechanism. A spatial mechanisms, ठीक है, which are क्या क्या है? फर्स्ट, lytic cycle, B lysogenic cycle. Lytic or lysogenic cycle. Now the first is lytic cycle. First, lytic cycle. What is lytic cycle? The main steps of lytic cycle are adsorption, first, penetration, second, latent period, third, maturity, fourth, and release, fifth. Okay. The main steps are first क्या है? एडजॉर्प्शन या हम इसको अटैचमेंट भी बोल सकते हैं. तो बैक्टीरियोफेज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट अ बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियोफेज इज अटैच्ड टू द बैक्टीरियल सेल बाय द हेल्प ऑफ इट्स टेल फाइबर. बैक्टीरियोफेज attaches to the bacterial cell, by its tail fiber, ठीक है. नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज अब वायरस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर में जाएगा कैसे. तो बोला जा रहा है कि व्हेन द बैक्टीरियोफेज
is attached with the bacterial cell, only the nucleic acid part, that is either DNA or RNA, which is the genetic material of the bacteriophage, is able to enter inside the bacterial cell, but the protein coat, जिसको हम capsid बोल रहे हैं, that remain outside, that is unable to enter inside the bacterial cell. तो लिखेंगे only न्यूक्लिक एसिड, जैसे अगर बैक्टीरियोफेज है तो इसका न्यूक्लिक एसिड होगा डीएनए. ओनली न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज, दैट इज बैक्टीरियोफेज, आर इंटरिंग द बैक्टीरियल सेल. ओनली न्यूक्लिक एसिड जो होता है फेज का, वो इंटर करता है बैक्टीरियल सेल में थ्रू, कैसे? थ्रू द लाइसिस. लाइसिस मतलब होता है तोड़ना. किसको तोड़ेगा? थ्रू द लाइसिस ऑफ सेल वॉल. थ्रू द लाइसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल. किसके द्वारा? बाय लाइसोजाइम एंजाइम. बाय लाइसोजाइम एंजाइम. लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, by the help of lysozyme enzyme, which are released by tail fiber, the bacteriophage dissolve or destroy the infected part cell wall, and the nucleic acid enter through it. ठीक है? Secreted by tail fiber. Secreted by tail fiber. Secreted by tail fiber. ओके? अब क्या होगा? अब होगा कि ये जब टेल फाइबर के अंदर गया तो प्रोटीन कोड इज लेफ्ट आउटसाइड. प्रोटीन कोड तो घुस नहीं पाएगा. इस प्रोटीन पार्ट को बैक्टीरियोफेज का, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाया, विच इज अनेबल टू इंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड घोस्ट और डाउटनट. ओके? द प्रोटीन पार्ट which is unable to enter the host. host का मतलब बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल called host और डाउटनट. ठीक है? डाउटनट नहीं, डफनट लिख दो बेटा. डफनट, सॉरी. ठीक है? अब ये हो गया पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन के बाद होगा लैटेंट पीरियड. लैटेंट पीरियड उसको कहा जाता है जिसमें ये जो फेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर किया, इट टोटली टेक द कंट्रोल ऑफ द होस्ट मेटाबॉलिक सिस्टम, और वो होस्ट मेटाबॉलिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा कि वो जो भी प्रोटीन बनाए, दैट प्रोटीन मस्ट बी वायरल प्रोटीन. नेक्स्ट, द वायरल डीएनए एंड आरएनए आर ब्रोकन, एंड फ्रॉम दिस सेलुलर डीएनए ऑफ द होस्ट फेज डीएनए इज फॉर्म्ड. और जब फेज डीएनए बन जाएगा, आउटसाइड दिस फेज डीएनए अ प्रोटीन कोट इज फॉर्म्ड. यानी न्यूक्लिक एसिड बीच में हो गया और चारों ओर प्रोटीन का कोट हो गया. ठीक है? अब इसको कहा जाता है बैक्टीरियल, या सॉरी, इसको कहा जाता है वायरल किड. अब इस वायरल किड का जो मैच्योरिटी होगा, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज. तो थर्ड होगा पेनिट्रेशन के बाद लैटेंट पीरियड. तो ये दोनों समझ आ गया? मिटा दें इसको. थर्ड, latent period. C, latent period. इसमें क्या होगा? फेज डीएनए controls host
सेलुलर मैशिनरी। फेज डीएनए कंट्रोल करता है होस्ट के सेलुलर मैशिनरी को। इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, phage protein is formed, phage protein is formed। पहला ये डिफरेंस हुआ जब फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के पूरे सेलुलर मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरा क्या होगा, सेलुलर डीएनए, सेलुलर डीएनए एंड आरएनए, सेलुलर डीएनए और आरएनए is broken down, is broken down, ठीक है। सेलुलर डीएनए और आरएनए दोनों को तोड़ दिया गया एंड फ्रॉम दिस सेलुलर डीएनए और इस सेलुलर डीएनए से फेज डीएनए इज फॉर्म। फेज DNA is formed. Next, now protein cover the DNA fragment to form a kid virus. Now protein covers the DNA fragment। नाउ प्रोटीन कवर करेगा डीएनए फ्रैगमेंट को टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, किड वायरस, किड वायरस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फेज क्या होगा, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है, दिस यंग वायरस is changed into a adult virus। This young viron is changed to, इसमें चेंज होगा, चेंज टू एडल्ट वायरस। यंग वायरस चेंज होगा एडल्ट वायरस में। हेंस दिस process is called, hence this process is called maturation। Now the last phase of the lytic cycle, that is called release। The viruses are mature, cell wall of the bacterial cell is already weak due to the effect of lysozyme enzyme। The release of virus takes place by breaking the host cell, and when this virus kits, that is mature virus, comes out of the bacterial cell by rupturing the cell wall, it is again prepared for infecting the another bacterial cell। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ फेज होगा ई रिलीज। रिलीज में क्या होगा, द वायरसेस इज मैच्योर। ठीक है, वायरसेस मैच्योर हो गया, इज नहीं, वायरसेस लिख रहे हैं तो द वायरसेस आर मैच्योर। ठीक है, सेल वॉल of the bacterial cell becomes weak by enzyme lysozyme।
बाय एंजाइम लाइसोजेन। ठीक है, द रिलीज ऑफ वायरस, द रिलीज ऑफ मैच्योर वायरसेस takes place, the release of mature viruses takes place by bursting of host cell, ठीक है, and these are again ready, and these are again ready, या वर्ड यूज कर सकते हो, these are again prepared for what? For infecting the new bacterial cell, prepared for next infection. ये हो गया तुम्हारा लाइटिक साइकिल, जिसमें होस्ट सेल के अंदर में जब बैक्टीरियल सेल, वायरस सेल एंट्री कर रहा है तो वो उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले रहा है और सबसे पहले उसको फोर्स कर रहा है कि यू हैव टू प्रोड्यूस अ वायरल प्रोटीन। देन इट टेक द कैप्चर ऑफ डीएनए ऑफ द होस्ट एंड फोर्स इट टू फॉर्म वायरल डीएनए। जब वायरल डीएनए और वायरल प्रोटीन बन गया तो वायरल डीएनए के चारों और बाहर में प्रोटीन का कोट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड वायरस किड, दैट इज वायरॉन। इन द मैच्योरिटी फेज दिस वायरॉन कन्वर्टेड इनटू मैच्योर वायरस, and in the release phase the virus particle, ठीक है, rapture the cell wall of the bacteria and comes out. So this is called lytic cycle. Lytic means breaking up or rupturing. Okay, now the next cycle what we discuss is lysogenic cycle. In the lysogenic cycle, when the virus particle enter into the host cell, initially first of all it doesn't undergo replication, and second it does not take the control of the host machinery, neither rupturing the host cell. मतलब ये होस्ट सेल के अंदर एंट्री करने के तुरंत बाद ना ही होस्ट के मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेता है और ना ही होस्ट सेल को रैप्चर करता है। दैट इज कॉल्ड लाइसोजेनिक साइकिल। B, lysogenic cycle. Okay, it is a mode of multiplication. It is a mode of multiplication. It is a mode of multiplication. ये एक mode of multiplication है in which the virus does not causes immediate lysis of the host cell. ये होस्ट सेल का इमीडिएट लाइसिस नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? वायरस। किस साइकिल में नहीं करेगा? लाइसोजेनिक साइकिल में। ठीक है, नॉर इट प्रोड्यूसेस, क्योंकि ये प्रोड्यूस भी नहीं करेगा क्या? फेज पार्टिकल्स इमीडिएटली। फेज पार्टिकल्स immediately. Up it has following stages. It has following stages. पहला, एंट्री ऑफ वायरस और एंट्री ऑफ वायरल जीनोम जिसको बोलते हैं इनटू द होस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल। फर्स्ट, एंट्री ऑफ वायरल जीनोम, entry of viral genome into the host या into the bacterial cell। क्योंकि बैक्टीरियोफेज के लिए होस्ट कौन है? बैक्टीरियल सेल। तो ये पहला स्टेप होगी। इसमें क्या होगा? द वायरस अटैचेस टू
the surface of the bacterial cell by the help of tail fiber, and the viral genetic material, bacteriophage का genetic material क्या है? DNA material enter into the host by the help of lysozyme. The virus क्या है यहाँ पे? phage, bacteriophage attaches to the bacterial cell. किसके द्वारा? by tail fiber, by tail fiber, and then the genetic material क्या है? फेज में DNA enter into the bacterial cell. कैसे होगा? by the help of lysozyme, जो कि एक एंजाइम है, released by tail fiber. लाइसोजाइम से क्या फायदा होता है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पार्ट में ये वायरस बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होता है. ये हो गया पहला पार्ट. दूसरा पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज. प्रोफेज वो फेज है जिसमें वायरस बैक्टीरियल सेल में तो रहता है, ना वो अपना मल्टीप्लाई करके नंबर बढ़ाता है, ना वो वायरल डीएनए को फोर्स करता है, ना वो बैक्टीरियल डीएनए को फोर्स करता है कि वो वायरल डीएनए बनाए. ठीक है. देखो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज. फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज. इसमें क्या है? द वायरस genome produces. वायरस जीनोम क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है a repressor and an integrase. वायरस प्रोटीन दो चीज यहां पे वायरल जीनोम प्रोड्यूस कर रहा है, एक रिप्रेसर और दूसरा इंटीग्रेस यानी एंजाइम. अब क्या होता है? बोला जा रहा है कि जो रिप्रेसर है, इट डू नॉट अलाउ द वायरल जीनोम टू टेक कंट्रोल ऑफ द होस्ट मेटाबॉलिक सिस्टम. द repressor do not allow the वायरल जीनोम. रिप्रेसर वायरल जीनोम को ये परमिशन नहीं देता, ये अलाउ नहीं करता है कि वो टू टेक कंट्रोल ऑफ द होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी. होस्ट के मेटाबॉलिक सिस्टम को वो अपने कंट्रोल में लाए. होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी. ठीक है. तो जो रिप्रेसर है ये वायरल जीनोम को अलाउ करता ही नहीं है कि वो होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में लाए. ये काम कौन करेगा? रिप्रेसर. उसी तरह से एंजाइम इंटीग्रेस का काम है it fuse the viral genome with DNA of the host cell at a specific site. Enzyme integrase fuses the viral genetic material to a bacterial genome
at a specific site. At a specific site. इंटीग्रेस का काम है वायरल जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ ये ऐड करता है एट अ स्पेसिफिक साइट. ठीक है. द इंटीग्रल जीनोम इज कॉल्ड, और इस इंटीग्रल मतलब वायरस और बैक्टीरियल जीनोम का जो कॉम्बिनेशन है इसी को प्रोफेज या प्रोवायरस कहा जाता है. द इंटीग्रल वायरल जीनोम, the integral viral genome is called prophage or provirus or provirus. ठीक है, हो गया. अब इन दिस स्टेट वायरस को कहा जाता है इनएक्टिव. इन दिस स्टेट द वायरस रिमेन इनएक्टिव, या बोल सकते हो वायरस रिमेन नॉन वायरुलेंट. इन दिस स्टेज द वायरस रिमेन इनएक्टिव. वायरस स्टेज में क्या है? इनएक्टिव. और इसी स्टेज को टेम्परेट फेज कहा जाता है या टेम्परेट स्टेज. इट इज कॉल्ड टेम्परेट स्टेज. टेम्परेट स्टेज. ठीक है. अब देखो, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल हो गया जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज हुआ. वायरस जीनोम प्रोड्यूस कर रहा है दो, रिप्रेसर और इंटीग्रेस. रिप्रेसर का काम है कि ये वायरल जीनोम जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर किया है उसको ये अलाउ नहीं करता है कि वो बैक्टीरिया के होस्ट मेटाबॉलिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले. जबकि इंटीग्रेस क्या करता है? वायरल जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के स्पेसिफिक साइट में जोड़ देता है. अब और ये जो इंटीग्रल कॉम्बिनेशन है वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए का, इसी को प्रोफेज या प्रोवायरस कहा जाता है. इस स्टेज में, प्रोफेज स्टेज में वायरस इनएक्टिव होता है और इसको टेम्परेट स्टेज भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? टेम्परेट स्टेज. ठीक है. नेक्स्ट इज लाइसोजेनिक. यहां तक समझ आ गया? लाइसोजेनी, ये हो गया थर्ड स्टेज. लाइसोजेनी में क्या होगा? द कंडीशन ऑफ द होस्ट सेल कैरिंग अ प्रोफेज इज कॉल्ड लाइसोजेनी. द कंडीशन ऑफ ए होस्ट सेल कैरिंग a prophase is called lysogeny. ठीक है. नेक्स्ट, द प्रोफेज मल्टीप्लाई. द प्रोफेज मल्टीप्लाई. द प्रोफेज मल्टीप्लाई along with the multiplication of the host cell without harming the latter. The prophase multiply along with the multiplication of host cell. जो प्रोफेज है ये मल्टीप्लाई कर रहा है along with the multiplication of host cell without harming the prophase. प्रोफेज को बिना, विदाउट हार्मिंग द होस्ट. होस्ट को कोई हार्म ये नहीं कर रहा है.
This mode of multiplication is called lysogenic cycle. This mode of मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह के मल्टीप्लीकेशन को जिसमें वायरल डीएनए भी मल्टीप्लाई कर रहा है, होस्ट डीएनए भी मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन वायरल डीएनए होस्ट को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन ये वायरस जो अभी लाइसोजेनिक साइकिल दिखा रहा है, ये लाइटिक साइकिल भी शो कर सकता है अगर रिप्रेशर नहीं बने। जैसे ही रिप्रेशर नहीं बनेगा, अब वायरल डीएनए को कोई रोकने वाला नहीं है कि तुम होस्ट डीएनए को अपने कैप्चर में मत लो, और वो जैसे ही होस्ट डीएनए को अपने कैप्चर में लेगा, वो सबसे पहले उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को कैप्चर करेगा और वायरल प्रोटीन बनाएगा। वायरल प्रोटीन बनाने के बाद वो डीएनए और आरएनए को ब्रेक करेगा और डीएनए को वो फोर्स करेगा टू प्रोड्यूस वायरल डीएनए, नॉट बैक्टीरियल डीएनए। जब लार्ज अमाउंट में वायरल डीएनए बन जाएगा तो प्रोटीन कोट इज सराउंडेड ऑन ऑल द वायरल डीएनए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वायरल किड इज फॉर्म। और जब वायरल किड फॉर्म हो जाएगा, दे अंडरगो मैच्योरेशन टू फॉर्म मैच्योर वायरस, एंड व्हेन अ मैच्योर वायरस इज फॉर्म, इट कॉज रैप्चरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट इज होस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। ठीक है, लास्ट है conversion into lytic phase। conversion into lytic phase। ठीक है, इसमें क्या होगा? occasionally repressor protein is not formed। repressor is not formed या repressor formation is inhibited, मतलब रुका गया, is inhibited। जैसे ही repressor प्रोटीन को इनहिबिट किया गया, ये इनहिबिट कैसे होता है? सर्टेन फैक्टर से, जैसे कि फिजिकल फैक्टर में होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल फैक्टर्स में होगा नाइट्रोजन गैस, मस्टर्ड गैस, और स्ट्रेस भी इसको इनहिबिट करता है। क्या होगा? द वायरल जीनोम सेपरेट्स फ्रॉम द होस्ट सेल एंड बिकम इन्फेक्टिव। अब ये बन गया इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का मतलब क्या हुआ? इन्फेक्टिव का मतलब हुआ यहां पे, ठीक है, लाइटिक। अब जब ये लाइटिक हुआ तो ये क्या करेगा? होस्ट सेल के मशीनरी को अपने कैप्चर में लेगा। होस्ट सेल के मशीनरी को अपने कैप्चर में लेने के बाद उसको फोर्स करेगा टू फॉर्म वायरल प्रोटीन, और फिर वो डीएनए को और आरएनए को रैप्चर करेगा और वायरल डीएनए बनाएगा जिसके चारों ओर प्रोटीन कोट का पैकेजिंग होगा। इन दिस वे वायरस आर फॉर्म। द इनर्ट पार्टिकल ऑफ वायरस आउटसाइड इट्स होस्ट इज कॉल्ड वायरॉन। याद रखना, द इनर्ट पार्टिकल ऑफ वायरस आउटसाइड इट हो, जब वो होस्ट बॉडी में नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वायरॉन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा लाइसोजेनिक साइकिल। नाउ वी नो व्हाट इज द यूजेस ऑफ वायरस। क्या वायरस हमेशा हार्मफुल ही है कि इसका कुछ यूज भी है? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, uses of virus. Uses of viruses. First, specific viral strain are cultured and attenuated to be used as a vaccine. Special क्या
viral strain. Viral strain are cultured and attenuated to be used as vaccine, and attenuated to be used as vaccine against specific disease. अभी जो कोरोना वायरस का वैक्सीन लग रहा है ये भी इसी बेसिस पे, ठीक है. सेकेंड, यानी पहला यूज हुआ टू यूज्ड एज अ वैक्सीन. सेकेंड, द यूज ऑफ क्या, द यूज ऑफ साइनोफेजेस LPP1 and NP1 or SM1 CBN virus 1 are the use of cyanophage LPP1 SM1 are useful in controlling. किसको कंट्रोल करेगा? Are useful in controlling water blooms, है ना. पानी में देखियो जो पूरा एकदम ग्रीन कलर का एक लेयर बैठ जाता है एल्गल का, उसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं. इसी तरह का किसी भी प्लांट का जो लेयर बैठता है पानी के ऊपर विच कंटामिनेटेड द प्लांट, दिस कैन इजिली बी डिस्ट्रॉयड बाय साइनोफेजेस LPP1 and SM1 viruses. Next, bacteriophage are used by Hersey and Chase to prove that DNA is the chemical basis of heredity. ठीक है. Bacteriophage are used by Hersey and Chase, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, to prove that DNA is the Hersey and Chase to prove that DNA is the क्या, DNA is the chemical basis of life, chemical basis ऑफ हेरिडिटी, है ना. क्योंकि हेरिडिटी के ऊपर प्रूफ किया था, इसके थ्रू प्रूफ किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू जेनेटिस्ट. व्हाई? बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट ट्रांसडक्शन. बैक्टीरियोफेज आर ऑफ ग्रेट interest to genetists as they bring about transduction. This transduction is a process of genetic recombination in bacteria, and in transduction the genetic material of bacterial cell is transferred from one bacterial cell to another bacterial cell with the help of bacteriophage, and this process is called transduction. ठीक है. अब लास्ट फिफ्थ क्या होगा? वाटर ऑफ रिवर गंगा is believed to have phages which destroy bacteria. River Ganga water is believed to have, क्या है इसके पास? believed to have phage which kills bacteria, ठीक है, या destroy bacteria. That is why bacteria does not spoil the water of Ganga. Okay. नाउ हम लोग बार बार यहाँ बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ रहे हैं. सो व्हाई शुड वी डज नॉट नो व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, व्हाट आर इट्स टाइप एंड हाउ इट लुक्स. ओके. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियोफेज. यहां तक समझ आ गया?
बैक्टीरियोफेज। Bacteriophage. What is bacteriophage? The viruses which infect bacterial cell are called bacteriophage. Now, types of bacteriophage. Types of bacteriophage. What are the types of bacteriophage? ठीक है, एक है प्रोफेज। प्रोफेज वैसे बैक्टीरिया को वायरस को कहा जाता है या बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है जिसमें वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों एक साथ अटैच है, बट वन इज नॉट इन्फेक्टिंग द अदर। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोफेज। दूसरा नाम नॉन वायरुलेंट फेज, नॉन वायरुलेंट फेज या नॉन इन्फेक्शियस फेज। नॉन इन्फेक्टिव फेजेस। ठीक है, नॉन इन्फेक्टिव फेजेस। द phases which do not destroy the bacterial cell। जो फेज बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर में रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेज। ठीक है, हो गया। अब such bacterial cell which are having prophage inside them are called lysogenic bacteria। Such bacterial cell which are having prophage यानी नॉन इन्फेक्टिव फेज, प्रोफेज in their body are called, क्या बोलते हैं उसको? प्रोफेज बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? प्रोफेज बैक्टीरिया या लाइसोजेनिक। लाइटिक तो होगा नहीं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। दूसरा है वायरुलेंट और इन्फेक्टिव फेज। वायरुलेंट और इन्फेक्टिव फेज। वायरुलेंट का मतलब ही इन्फेक्शियस हो गया। तो द फेजेस विच कॉज लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल एट वंस आर कॉल्ड वायरुलेंट फेजेस। द फेजेस यानी बैक्टीरियोफेजेस विच कॉज lysis of the bacterial cell at once। एक ही बार में जब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर में एंट्री करेगा, उसके अंदर में रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा और फिर बैक्टीरियल सेल को बस्ट करके रिलीज हो जाएगा। एट वंस आर कॉल्ड वायरुलेंट फेज। वायरुलेंट फेज, इसका एग्जांपल क्या होगा? T2, T4। ठीक है, ठीक है, और यही सब सबसे ज्यादा स्टडीड भी किया गया है। अब हम लोग जान लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है बैक्टीरियोफेज का।
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एक टैडपोल लाइक है जिसमें हेड और टेल है, और इसका जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है. ठीक है. इट इज हैविंग टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर. टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. टैडपोल जैसा है, एकदम लार्वा जैसा. टैडपोल लार्वा जो फ्रॉग का होता है, दैट इज हैविंग हेड एंड टेल. ठीक है. दूसरा, न्यूक्लिक एसिड. इन न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट. न्यूक्लिक एसिड basically DNA is present inside the host. ये हो गया पहला पार्ट. दूसरा, head is hexagonal which is 950 angstrom long and 650 angstrom broad. Its head is hexagonal which is 950 angstrom long and 650 angstrom wide. ठीक है. Now tail is joined to the head by neck and collar. Tail is joined to the head by neck and collar. टेल से जो हेड ज्वाइन होगा उसके बीच में नेक होगा और कॉलर होगा. अब टेल क्या है? टेल एक हॉलो कोर है, वो जो चारों तरफ से सराउंडेड है, घेरा हुआ है टेल सीथ से, और एंड ऑफ द टेल इंड प्लेट है जिसमें प्रेजेंट है टेल फाइबर. इस टेल फाइबर के थ्रू ही बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंफेक्शन करता है. ठीक है. अब टेल इज हॉलो कोर. ठीक है. एंड is surrounded by, टेल एक hollow core है and is surrounded by tail sheath at the end of tail. At the end of tail क्या होगा? End plate is present. End plate is present having tail fiber. ठीक है. हो गया. अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है. अब देखो ठीक है. ये हो गया हेड जो कि 950 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग एंड 650 एंगस्ट्रॉम ब्रेथ या विड्थ है. ठीक है. ये है कॉलर. ये हो गया टेल.
और इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये है टेल शीथ, ठीक है। ये है एंड प्लेट, और इस एंड प्लेट के ऊपर जो ये स्पाइक्स लगा हुआ है, ठीक है, इसके थ्रू ही बैक्टीरियल को इन्फेक्शन करता है, ठीक है। So this is the structure of bacteriophage. That's all for today. Thank you.